امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں وفد چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہونے والے ہیں۔ اگر مذاکرات میں بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ سے بات چیت۔ کہا، ایرانی قیادت مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم ایران میں صحیح لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں، اس وقت کوئی کھیل نہیں کھیل رہا۔ ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ اگر ایران کی نئی قیادت سمجھدار ہو تو ایران کا مستقبل خوشحال ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے مجھے ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں کیا۔ میرا موقف رہا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور سے انکار۔ مذاکرات کے لیے ایرانی وفد پاکستان نہیں جائے گا۔ بحری ناکہ بندی کے خاتمے تک امریکہ کے ساتھ مزید کسی بات چیت کا کوئی امکان نہیں۔ ہم نے پاکستان کو 10 نکاتی تجاویز پیش کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقا کی اہم پریس بریفنگ۔ کہا کہ امریکہ نے بحری ناکہ بندی کر کے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ سفارتی عمل آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ امریکہ اسرائیل نے دوبارہ جارحیت کی تو ہماری افواج مناسب جواب دیں گی۔ امریکہ ایران مذاکرات جلد شروع کرانے کے لیے پاکستان نے سفارتی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں اعلیٰ سفارتکاروں کی مختلف علاقائی امور پر مشاورت ہوئی۔ موجودہ جنگ بندی سے متعلق معاملات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور، وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ایران کی جانب سے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفراء سے ہونے والی ملاقاتوں پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کی شرکت یقینی بنانے کے لیے سفارتی روابط کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو کوسٹا کا ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے صدر کوسٹا کے ساتھ پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر کوسٹا نے خطے میں مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ کہا کہ یورپی یونین اس عمل کی ہر ممکن حمایت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں امریکہ اور ایران کی مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے میدان سج گیا۔ اسلام آباد میں دوسرے راؤنڈ کی تمام تیاریاں مکمل۔ دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر جم گئیں۔ امریکی وفد مذاکرات کے لیے آج اسلام آباد آئیں گے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ ایل جے اسٹیو وٹکوف اور مشیر جیرڈ کشنر ساتھ ہوں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اہم مذاکراتی نشست منگل کو متوقع۔ اسلام آباد کے ریڈ زون جانے والی سڑکیں بند، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس پم سے سیکریٹریٹ تک بند، ٹرانسپورٹ بھی معطل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران اور امریکہ کے سفیروں سے الگ الگ ملاقاتیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی و مذاکراتی چیلنجز کے ذریعے پائیدار حل کی ضرورت پر زور۔ ایران و امریکہ نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ غیر ملکی وفود کے لیے سیکیورٹی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان ایران اور امریکہ تنازع کے مذاکرات کے ذریعے حل کا خواہاں ہے۔ تنازع کا دیر پا حل ہی خطے کے استحکام و امن کا ضامن ہے۔ امریکی سینٹکام نے ایرانی جہاز پر کارروائی کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی میرینز نے ایرانی کنٹینر شپ توسکا پر قبضہ کر لیا۔ جہاز آبِ ہرمز میں ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سینٹکام کا دعویٰ، امریکی بحریہ نے وارننگ کے بعد جہاز کے انجن روم کو نشانہ بنا کر روکا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی جہاز اب امریکی تحویل میں ہے۔ اندر موجود سامان کا جائزہ جاری۔ امریکی بحری جہازوں پر ڈرون حملے کیے گئے۔ ایران نے امریکی کارروائی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ نشانہ بننے والا جہاز چین سے ایران آ رہا تھا۔ تہران کا امریکی اقدام کو میرین ڈکیتی قرار دے کر جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی فورسز کی جوابی کارروائی کی دھمکی۔ کشیدگی میں مزید اضافہ۔ امریکی حملے کے بعد خطے میں بحری تصادم کا
खतरा बढ़ गया। ईरान के कार्गो जहाज को अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए जाने पर चीन का इजहार तशवीश। चीनी वजारत खारजा का जहाज को जबरदस्ती रोकने पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीन की फरीकैन से जंग बंदी मुआहदे की पासदारी की अपील। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नाजुक मरहले में दाखिल हो गए। चीन मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जाए। उम्मीद है कि फरीकैन सीज़फायर मुआहदे की पासदारी करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत कर दी। कहा, जंग किसी के मफाद में नहीं है। दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। कशीदगी को कम करने के लिए हर अकली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। अमरीकी धमकियों के सामने डटकर खड़े हैं। मुश्किल हालात से दानिशमंदी और कौमी वकार के साथ निमट रहे हैं। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए रेड लाइन्स मुतय्यन कर दी। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी का कहना है कि गैर ज़रूरी मुतालबात किसी सूरत कबूल नहीं। मुज़ाकराती हिकमत अमली मुकम्मल कौमी मफादात और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत होती है। तेहरान ने मुज़ाकरात को मैदानी जंग का तसलसल करार दे दिया। इस्लामाबाद मुज़ाकराती टीम भेजने का फैसला मुस्बत इशारों से मशरूत है। कशीदगी के बावजूद ईरान हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार है। दुश्मन पर एतमाद नहीं, सूरत हाल किसी भी वक्त बिगड़ सकती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबॉफ ने कहा कि सिफारतकारी के साथ दिफाई तैयारी भी जारी है। कौमी सलामती यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। तेहरान सिफारतकारी के दरवाजे खुले रखना चाहता है, मगर साथ ही किसी भी मुमकिन तसादुम के लिए खुद को तैयार भी कर रहा है। नाकाबंदी के साथ सिफारतकारी का दावा नाकाबिल कबूल है। कौलो फेल में तजाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का सख्त बयान। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर शदीद तनकीद भी की। बोले, नाकाबंदी बरकरार रही तो कशीदगी खत्म नहीं होगी। जंगी जराइम की धमकियों और गैर माकूल मुतालिबात पर एतराज है। स्पेन इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करता। यूरोपीय यूनियन को इसराइल से एसोसिएशन मुआहदा खत्म करने की तजवीज़ दूंगा। हस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस का बयान। कहा, इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क शराकतदार नहीं रह सकता। हस्पानवी वज़ीर आज़म का कहना था कि तजवीज़ यूरोपीय यूनियन के 27 वज़राए ख़ारिजा इजलास में पेश की जाएगी। अमरीका और इसराइल के ईरान के खिलाफ इक़दामात भी गलत थे। मशरक़ी वस्ता कशीदगी, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। खाम तेल की कीमत में हफ्ते के आगाज पर 7% तक इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल 96, WTI $90 फी बैरल तक पहुंच गया। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद मंडी में बेयकीनी बढ़ गई। ईरान के मुमकिना जवाबी हमले के खदशात से कीमतों में मजीद दबाव हो गया। बरतानवी खाम तेल भी महंगा, 5% इजाफे के बाद $95.51 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका फौजी मश्क थंडर 2 कामयाबी से मुकम्मल। चराट में 2 हफ्तों पर मुहित मश्क का इनेकाद किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस में बाहमी ताउन को फरोग दिया गया। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्री स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। मोहम्मद साद अब्दुल रज़ाक समेत आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। पाक मिस्र अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने में मश्क अहम संगे मील करार। बलोचिस्तान में बहादुरी और कुर्बानी की एक और दास्तान रकम। खुलसार में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, लेडी कांस्टेबल मलिक नाज शहीद हो गई। बलोचिस्तान की बहादुर बेटी ने वतन पर जान कुर्बान कर दी। शहीद मलिक नाज के शौहर भी 2011 में शहीद हुए थे। 2013 में शहीद कोटा पर लेवीज फोर्स में शामिल हुई। एक बेटा और 2 बेटियां सोमवारान में शामिल। कौम का शोहदा को सलाम, कुर्बानियां हमेशा याद रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बन्नू में कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार मारा गया। हलाक दहशतगर्द से खुदकश जैकेट और असलहा बरामद। बन्नू खुदकश हमले का मरकजी सहूलतकार भी अंजाम को पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से बड़ा सानहा नाकाम बना दिया गया।
इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, फोर्सेस का दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म। वज़ीर आज़म और अस्कर क़यादत तनाज़े के हल के लिए सरगर्म सिफारती कोशिशों में मसरूफ हैं। पेचीदा आलमी तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन, लचक और सब्र जरूरी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल सिफारती हदफ हासिल करके आलमी सतह पर साख बेहतर बनाई। जारी रही तो आलमी मईशत पर मनफी असरात, महंगाई में इजाफे का खदशा है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल और अवामी रिलीफ के लिए मुतहरिक है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी और फ्यूल सब्सिडी से मुताल्लिक 2 अहम इजलास। गंदम खरीदारी से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आला ने बड़ा फैसला करते हुए गंदम फरोख्त की हद खत्म कर दी। अब छोटे आबादकार बगैर किसी पाबंदी के गंदम फरोख्त कर सकेंगे। फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म होने से हारियों को नुमाया रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध की गंदम खरीदारी मुहिम को मजीद तेज करने की भी हिदायत। दूसरे इजलास में फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 3,976 गाड़ियों को सब्सिडी की अदायगी की जा चुकी है। 5,000 से ज़ायद केसेस में डेटा की गलतियों के बायस तस्हीक का अमल जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत शोबा तालीम में इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। इस्लाहाती इक़दामात और पेशरफ्त का तफसीली जायजा। दूर दराज इलाकों में कम्युनिटी स्कूलों के क़याम का फैसला। डबल शिफ्ट स्कूल प्रोग्राम में तौसीब पर इत्तफाक। IT और मसनूई ज़हानत के कोर्सेज शुरू करने का ऐलान। इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के क़याम के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने की भी हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि सूबे का एक भी बच्चा तालीम के बुनियादी हक से महरूम न रहे। मुल्क भर में बगैर इजाजत नई यूनिवर्सिटी या सब कैंपस के क़याम पर फौरी पाबंदी आयद। हायर एजुकेशन कमीशन का अहम फैसला, खत जारी। इजाजत और स्क्रूटनी के बगैर कोई जिली कैंपस या यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। NOC के बगैर डिग्री तस्दीक और मंजूरी बंद। खिलाफ वर्जी पर कैंपस और प्रोग्राम की मंजूरी मुअत्तल हो सकती है। मुल्क भर में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीम मुतासिर। कराची में लोड शेडिंग 12 घंटे से तजावुज कर गई, शहरी बेहाल। पेशावर में बिजली बंदिश 16 घंटे तक जा पहुंची। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं, शॉर्टफॉल महदूद है। देही इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग बरकरार। चीन की बेमिसाल तरक्की दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का चीनी ज़बान के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। चीनी अवाम को मुबारकबाद, कहा दुनिया में 1 अरब से ज़ायद अफराद चीनी ज़बान बोलते हैं। चीनी ज़बान अक़वाम मुत्तहिदा की 6 सरकारी ज़बानों में शामिल है। पाकिस्तान चीन दोस्ती में ज़बान को अहम करार दे दिया गया। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर मामूर पंजाब पुलिस को चीनी ज़बान सिखाई जाती है। चीन के अमन, इस्तेहकाम और आलमी तरक्की में इसके कलीदी किरदार को सराहते हैं। कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स को बैनुल अक़वामी तर्ज पर मुंतकिल करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अहम ऐलान। शहर की बड़ी शाहराहों पर स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब किए जाएंगे। म्युनिसिपल कमिश्नर को स्मार्ट सिग्नल्स की खरीदारी का अमल जल्द शुरू करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पहले मरहले में रेड जोन और II चंद्रीगढ़ रोड को मॉडल एरिया के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे मरहले में MA जिन्ना रोड समेत शहर की दीगर अहम शाहराहों पर भी सिस्टम नाफिज किया जाएगा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। CIA विंग का टारगेटेड ऑपरेशन कामयाब। 4 रुकनी गैंग का सरगना समेत गिरफ्तार। पकड़े गए मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी। मुल्जिमान पेपर लीक करके लाखों रुपए बटोरते रहे। 13 ग्रुप्स में 13,000 से ज़ायद तलबा शामिल होने का इंकिशाफ। DIGCIA के मुताबिक कराची में नकल माफिया के 8 से 10 ग्रोह मुतहर्रिक हैं। लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। कफर किला में इस्राइली फजाई बमबारी, मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाने का इस्राइली दावा। जनूबी लेबनान के शहरियों को वापसी से रोक दिया गया। दरियाए लेतानी के करीब जाने पर पाबंदी। हिजबुल्लाह का इस्राइली फौजी काफिले पर हमले की तस्दीक। बताया कि धमाका खेज मवाद से 8 फौजी गाड़ियों को हदफ बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 बख्तर बंद गाड़ियां तबाह हो गई।
सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा कमी। फी तोला सोना 4,900 रुपए सस्ता। सोने की नई कीमत 5,01,162 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना भी 4,201 रुपए सस्ता। चांदी की फी तोला कीमत में 145 रुपए कमी। नई कीमत 8,417 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना $49 सस्ता हो गया। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। पीएसएल में आज आराम का दिन, कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर से होगा। रावलपिंडी का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के रिकॉर्ड 7 सेंचुरी कोयटा ग्लेडिएटर्स को 118 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी के 256 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 137 रन बनाकर आउट हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी की टीम पॉइंट्स टेबल पर सरफ़हरिस्त है।